Good morning, class. Good morning, students. Good evening, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Uh, let's wait for 2 minutes. All students are come. In today's lecture, we discuss the certain example of combination circuit. Basically, the meanings of examples of combination circuits, as we know that the half adder, full adder, half subtractor, full subtractor. These are the various types of basic example of combination circuit. Uh, in previous lecture, we discussed the how we maintain, how we make the combinational circuit, how we design the combination circuit, what are the various steps of designing the combinational circuit. Uh, as we have given the problem statement, after converting that problem statement, we identify the number of variables. Morning, sir. Good morning, good morning. So, number of variables. These variables are assigned as a capital alphabets, number of inputs variable, number of output variable, and also identify the relationship between the uh, these variables, how the input converted into the output. These information collected by the designer, and he maintained he mapped the K map. He mapped the values in the K map according to the truth table. Values are entered in the truth table by uh, help of a relationship given in the problem statement. And K-map also give the simplified Boolean expression. And lastly, we design the Boolean, design the logic circuit. These are the certain steps which are used for making the combination circuit. In today's video lecture, video's topic, we discussed how binary adder and binary subtractor work. How the binary adder and binary subtractor work. Uh, uh, in this lecture, we are going to look at the binary adder and subtractor circuit. We also we will learn about the half adder, full adder, and their working of these circuits. Okay. हाफ एडर फुल एडर को हम लोग देखते हैं कैसे यूज करेंगे सब्ट्रैक्टर हाफ एडर और फुल एडर एडर सब्ट्रैक्टर जो दो मेजर सर्किट यूज होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू के अंदर बेसिकली 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वी आर फेमिलियर विद दीज ऑपरेशंस इन द लॉजिक सर्किट adding and subtracting these circuits are used for multiplication and division. As we know that multiplication is multiple steps of addition. Multiplication is the multiple steps of addition, and division is the multiple steps of subtraction. There is no circuitry required for multiplication and division in the logic circuit. In the digital electronics, we are not use the specific circuit for multiplication and division. We use addition and subtraction circuits for these operation. As we know that the multiplication is the multiple steps of addition, and division is the multiple steps of addition, and division is the multiple steps of subtraction. So there are two types of circuits, adder and subtractor. Adder is used for adding binary numbers. Here we discuss the binary addition, and subtractor is used for subtracting the binary numbers. And these circuit use for multiplication and division respectively. Okay. स्टूडेंट्स आप लोग आज अटेंडेंस पहले ही लिख दीजिए क्योंकि कुछ
नेट इंटरनेट का इशू आ रहा है, हो सकता है कि बाद में डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस लिख दीजिएगा पहले ही चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो एडिशन को समझते हैं कैसे होता है, बाइनरी एडिशन के बारे में। और हाफ एडर फुल एडर, अच्छा एक चीज़ और कि हाफ, पहले एडिशन देखते हैं। हाफ एडर और फुल एडर में क्या डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस बताना चाहिए। हाफ एडर जो होता है आपका, हाफ एडर में हम दो बिट्स जो होती हैं, टू बिट्स को हम लोग डिवाइड कर ऐड करते हैं, सॉरी, हाफ एडर में टू बिट्स को ऐड करते हैं। जैसे कि बाइनरी एडिशन जो आपका है, बाइनरी एडिशन जब परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो टू बिट्स को ऐड करते हैं हाफ एडर के थ्रू। और जब तीन बिट ऐड की जाती है, तीन वेरिएबल को ऐड किया जाता है एक साथ में, तो उसके लिए फुल एडर बनाया जाता है। तो हाफ एडर फुल एडर में ऑपरेशन वाइज ये डिफरेंस है कि हाफ एडर टू वेरिएबल्स पे वैल्यू लेता है वन टाइम पे, और फुल एडर थ्री वेरिएबल पे वैल्यू लेता है, इसमें ए बी और इसमें ए बी सी। क्लियर है? तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज आर टू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यही एडर और सब्ट्रैक्टर परफॉर्म करते हैं। तो आज हम लोग एडर और सब्ट्रैक्टर के बारे में देख रहे हैं, उसकी चीज़ों को देख रहे हैं। तो हमने अभी बताया कि आपको कि जो ऑपरेशंस होते हैं ये बेसिक ऑपरेशन है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप सोचेंगे, ये भी तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, चार होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए किसी भी तरह का सर्किट जरूरत नहीं पड़ती है अलग से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है रिपीटेड स्टेप ऑफ एडिशन, एडिशन को बार बार परफॉर्म करिए। जैसे कि 2 की पावर 3 निकालना है तो 2 को 3 टाइम ऐड कर दीजिए, सेम वैल्यू आएगी। या 2 into 3 करना है आपको, तो 2 को 3 टाइम ऐड कर दीजिए। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटिशन ऑफ एडिशन, और डिवीजन क्या है, रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एडर और सब्ट्रैक्टर ही यूज कर लिया जाता है मोर देन वन टाइम। तो इसीलिए हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक्स्ट्रा सर्किट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जब हम लोग बाइनरी एडिशन करते हैं तो कैसे करेंगे, ये आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि बाइनरी एडिशन में हम जनरली जीरोज एंड वन के फॉर्मेट में बाइनरी वैल्यूज होती हैं। इसको बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर के अंदर बाइनरी के फॉर्मेट में बिट ली जाती हैं, और 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 0 0 है, 1 0 है, 0 1 1 1, ये हम लोग को पता है। तो इस केस में हम लोगों ने कल किया भी था ये, कि जैसे कि 0 + 0 आप करते हो तो उसका एडिशन क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है। यहाँ पे स्पेशल चीज़ है कि 1 + 1 0 रहेगा, और 1 कैरी, ये जो ये बिट आई है ये कैरी होती है। तो इसको हम लोग 1 0 लिखते हैं, या 0 अगर आप लिखेंगे तो 0 1, तो 1 0, तो 1 0 के लिए 1 कैरी है, 0 आपका इधर है। तो ये बेसिक ऑपरेशन है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सर्किट बनाना है। तो हाफ यहाँ पे बेसिकली आपको इस सर्किट को हम लोग बना भी चुके हैं हाफ एडर को, कि इसमें ए बी दो वेरिएबल्स हमारे पास थे, और सी कैरी है, और सम के लिए एस लिया हुआ। और ये आपका जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के थ्रू आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, और मतलब एक सम है, एक कैरी है, और 2 वेरिएबल्स हैं इनपुट। और 0 1 के 4 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं हमें, क्योंकि दो इनपुट वेरिएबल के लिए 2 की पावर 2 4 इनपुट कॉम्बिनेशन मिलते हैं हमें, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और रिजल्ट जो हमारे पास है कुछ ऐसा आएगा कि जब दोनों वैल्यूज 1 होंगी तब आपको 0 और 1 कैरी मिलेगा, और बाकी के केस में जब आपकी एडिशन करना है, 0 + 0 0 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा, और 1 + 1 0 और 1 कैरी। तो एक कैरी बिट के लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए। हाफ हेडर को बनाते हैं तो हाफ हेडर में बेसिकली टू वेरिएबल्स लिए जाते हैं बाइनरी हेडर में। और फुल हेडर क्या होता है, मैंने भी बताया कि फुल हेडर जो है वो 3 वैल्यू को लेता है, मतलब यहाँ पे 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं फुल हेडर में। 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे पास, 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज को हमें लिखती हैं। तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे हेडर फुल हेडर में। दोनों के सर्किट को देखते हैं। हाफ हेडर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, हाफ हेडर जो सर्किट बनता है वो अभी हमने बताया कि ये इनपुट, दो इनपुट्स हैं आपके ए बी,
टेबल देखिए जिस सर्किट में क्या बनाना होगा, क्या चीज़ जरूरी है वो आप यहाँ पे समझिए कि पहले तो हाफ एडर को आपको डिस्क्राइब करना होगा कि हाफ एडर इज ए लॉजिक सर्किट यूज्ड फॉर एडिंग टू वन बिट नंबर टू वन बिट नंबर्स और सिंपली टू बिट्स इज कॉल्ड एज ए हाफ एडर. हाफ एडर क्या है? हाफ एडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट यूज्ड फॉर एडिंग टू वन बिट नंबर और सिंपली टू बिट को ऐड करने के लिए हाफ एडर यूज होता है. The circuit has a two input and two output. One is sum and another is carry. अब अगर आपको ये जानना चाहें कि दो ये हैं तो इनको कहते क्या हैं, तो इसको नॉलेज के लिए कि ये जो आपके द इनपुट्स आर टू बिट्स बाइनरी नंबर इज नोन एज आर्गुमेंट एंड एडेंट. तो इस ये आर्गुमेंट है मान लिया सपोज करिए, तो इसको इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये एडेंट हो जाता है. तो आर्गुमेंट और एडेंट दो वैल्यूज हैं, इसके थ्रू हम लोग इनको ऐड कर रहे हैं. आउटपुट हमारा सम एंड कैरी होगा. तो इस तरह से इन चार वेरिएबल्स के लिए हमारे पास टेबल आई हुई है जो आपके सामने बनी हुई है. ये हाफ एडर की तो टेबल है. जब भी कोई सर्किट आता है तो उसके लिए पहले डिफाइन करना जरूरी है, फिर हमें उनके इनपुट आउटपुट वेरिएबल को बताना जरूरी है, फिर टोस्ट टेबल डिज़ाइन करना जरूरी है. टोस्ट टेबल ऐसे कुछ डिज़ाइन की जाती है. इनपुट सेक्शन है या आउटपुट सेक्शन है. इनपुट सेक्शन के अंदर इनपुट वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ए भी लिए हैं. जनरली इनपुट वेरिएबल को कैपिटल्स लेटर में लिया जाता है. आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं सम एंड कैरी हैं, ये हम लोग देख चुके हैं अभी ऑपरेशन में. और ये कैसे आ रहा है ये भी अभी आपने देखा, ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है कैसे करके. तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि 0 0 जब इनपुट होगा तो सम 0 आएगा, कैरी भी 0 रहेगी, कोई कैरी नहीं रहेगी. 0 1 में 1 सम आएगा, कोई कैरी नहीं रहेगी. 1 0 में 1 आएगा और कोई कैरी नहीं रहेगी. लेकिन लास्ट केस में 1 1 जब होगा, दोनों में बोथ इनपुट्स आर आर्गुमेंट एंड एडेंट आर 1, देन वी गेट द 0 एंड कैरी 1. इस तरह से टेबल आ गई. अब इस टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इफ वी ऑब्जर्व द सम वैल्यूज इन अबव टू टेबल इट रिजेंबल एन एक्सऑर गेट. ये हमने कल भी किया था. अगर आप इस ये कैसे इन्होंने लिखा, ये लिखा इसलिए कि जब इसको आप प्लॉट करेंगे के मैप में और बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू, अब यहाँ पर पूरा डिजाइन तो करना नहीं है, तो उसको आपको जो वैल्यू आएगी वो ए बी बार प्लस बी ए बार बी आएगी. तो उसको हम लोग एक्सऑर गेट के थ्रू बना सकते हैं. कैरी के लिए जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वहाँ पे एंड गेट जरूरत पड़ेगी. वही इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया है कि ऐसे यहाँ पे मिलेगा. इफ वी ऑब्जर्व दैट सम वैल्यूज इन द अबव टू टेबल इट रिजेंबल्ड एन एक्सऑर गेट. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ कैरी इन एन अबव टू टेबल रिजेंबल्स एंड गेट. इस कंक्लूजन को लिखने के लिए आप चाहें तो के मैप के थ्रू या बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं. इसके बाद है क्या, जब टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हाफ एडर यू नीड टू लॉजिक गेट्स. अब इन्होंने कंक्लूड किया कि हाफ एडर आपको बनाना है, तो इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आपने लिखा कि हमें दो लॉजिक गेट चाहिए, एक्सऑर गेट चाहिए और एक आपका एंड गेट चाहिए. एंड गेट कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आएगा और एक्सऑर गेट ए बी को कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा. तो लॉजिक डायग्राम हाफ एडर का जो ये आपका ब्लॉक डायग्राम कहलाता है. ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीन डायग्राम बनाने जरूरी है, ब्लॉक डायग्राम, टू टेबल और लॉजिक डायग्राम. तो ब्लॉक डायग्राम सिंपल है कि जो आपको क्लियर भी बताया डेफिनेशन ने कि दो वेरिएबल आपने इनपुट किए और ये समेशन सम लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं या सिग्मा. सिग्मा भी इन्होंने लिख दिया है तो वो भी समेशन दिखाता है. तो ये आपका आउटपुट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये आपका कैरी ओवर है, CO. तो कैरी आउट देखिए लिखा हुआ. तो कैरी आउट जो देखिए, कैरी आउट का मतलब होता है कि जो कैरी बाहर जाती है, सम यहाँ पे एडिशन में कैरी बाहर आ रही है, और जो आप सब्ट्रैक्टर करेंगे तो वहाँ पे कैरी इन हो जाती है, बोरो किया जाता है, कैरी ली जाती है. तो यहाँ पे कैरी आउट हो रहा है CO. और सम के लिए देखिए सिग्मा साइन मिल रहा है और ये लिख दिया सही. तो अलग अलग सिंबल्स होते हैं, कहीं चाहे तो आप सम लिख लीजिए, चाहे एस लिख लीजिए, चाहे C लिख लीजिए. तो स्टैंडर्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह कुछ सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं. तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जो कि ए बी दो इनपुट हैं. दो इनपुट को अगर आप हाफ एडर पर अप्लाई करेंगे तो आपको समेशन मिलेगा और कैरी आउट मिलेगा. ये आपका टेबल बनी हुई है, वही टेबल यहाँ पे लिखी हुई है कि जो आपकी इनपुट और आउटपुट की टेबल है, वही चीज़ दोबारा से उन्होंने लिख दिया.
यहाँ पे अभी आपको बताया था कि सर्किट को बनाने के लिए सर्किट कैसे बनाते हैं टेबल से, ये आप बना जान चुके हैं। के मैप के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर उसको रिजॉल्व मतलब मिनिमाइज करते हैं, समराइज करते हैं एक्सप्रेशन को। तो एक्सॉर गेट चाहिए, एक्सॉर गेट के थ्रू आपका सम बनेगा ए बी वैल्यूज, और ये आपका समेशन मिल गया। और यहाँ पे ये कैरी ओवर के लिए, कैरी आउट के लिए कि ये आपका एंड गेट। तो ये जो सर्किट है ये हाफ एडर का सर्किट है। हाफ एडर में एक आपको एक्सॉर गेट चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। तो जब आपका हाफ एडर आएगा तो आपको ये काम करना होगा कि पहले बताना होगा हाफ एडर होता क्या है, उसमें किस तरह के इनपुट आते हैं, फिर आपको उसके ऑपरेशन को एक्सप्लेन करना होगा, और उसके बाद फिर आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसमें आप के मैप के थ्रू या बुलियन एक्सप्रेशन के थ्रू उसको बता सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके बाद आप इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि हमें सर्किट बनाते समय क्या क्या चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि 3 चीज़ें बनानी है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर टेबल जो बना चुके हैं ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा बना दिए। और यहाँ पे हाफ एडर का सर्किट है, इसको ये डिज़ाइन करते आप लोग, इसको चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं या इसको नोट्स को मैं दूंगा तो उसमें लिख सर्किट जहाँ पे डिज़ाइन करना थोड़ा सा टफ पड़ता है इसलिए, और टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने ये पहले से इस तरह से कर दिया है कि एक्सॉर गेट और एंड गेट के थ्रू हम हाफ एडर बनाएंगे। हाफ एडर बेसिकली 2 बिट एडिशन के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाफ एडर? इट इज यूज फॉर 2 बिट एडिशन पर्पस। 2 बिट, 2 सिंगल बिट अगर आपको ऐड करनी है तो हाफ एडर यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अब इस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इन द अबव हाफ एडर सर्किट इनपुट्स आर लेबल्ड एज ए एंड बी। सर्किट बनाने के बाद उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। इन द अबव हाफ एडर सर्किट इनपुट्स आर लेबल्ड एज ए एंड बी and the sum output is labeled as a summation sign से रिप्रेजेंट किया, and the carry output labeled as CO, carry out। इस तरह से आपने डिस्क्राइब कर देते हैं। इसके बाद हाफ एडर का मेनली यूज क्या है, एप्लीकेशन। हाफ एडर का द हाफ एडर इज मेनली यूज टू एडिशन ऑफ आर्गुमेंट एंड एडेंड। 2 बिट को ऐड करने के लिए, फर्स्ट इज आर्गुमेंट, सेकंड इज एडेंड, ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर बाइनरी नंबर्स, 1 बिट, फर्स्ट 1 बिट बाइनरी नंबर, इनको हम यूज करते हैं इनपुट के लिए। वी कैन नॉट ऐड बाइनरी नंबर्स विद मोर देन 1 बिट। अगर आपकी सिंगल बिट से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं तो हम हाफ एडर नहीं यूज कर सकते हैं। हाफ एडर में ये रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है कि वो केवल सिंगल बिट की 2 वैल्यूज को ऐड कर सकता है। अब इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कि केवल एक ही बिट को वन सिंगल बिट, सिंगल ऑर्डर की 2 बिट को ऐड कर सकता है हाफ एडर, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट आया हुआ है फुल एडर। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू द लीड लिमिटेशन ऑफ हाफ एडर। ये आपको लिखना होगा फुल एडर जब आएगा तो फुल एडर में आप लिखेंगे कि हाफ एडर में प्रॉब्लम जो है, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ हाफ एडर इज प्रैक्टिकली नॉट यूज इन मेनी एप्लीकेशन। हाफ एडर को हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हर जगह, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन लेवल पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा जरूरी नहीं कि 2 ही बिट आए, सिंगल बिट, 2 सिंगल बिट आए उनको ऐड करना हो। तो रियल लाइफ में एडर को यूज करने के लिए हमें फुल एडर यूज करना पड़ता है। तो हाफ एडर इज प्रैक्टिकली नॉट यूज एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन में ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, स्पेशली इन मल्टी डिजिट एडिशन। मल्टी डिजिट एडिशन के लिए जनरली नहीं यूज किया। इन सच एप्लीकेशन कैरी ऑफ द प्रीवियस डिजिट्स एडिशन मस्ट बी एडेड along with the 2 bits, hence it is a 3 bit addition। इसमें होता क्या है कि हम लोग जो भी कैरी आती है प्रीवियस 2 बिट की, उनको अगेन एज ए इनपुट ले लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। मतलब कि हाफ फुल एडर जो होता है 3 बिट एडिशन करने के लिए, 3 बिट होती है उसमें ऐड करने के लिए। तो फुल एडर और हाफ एडर में डिफरेंस क्लियर हुआ कि हाफ एडर 2 सिंगल बिट को ऐड करेगा, फुल एडर 3 बिट को ऐड करेगा। देखते हैं फुल एडर क्या होता है। हाफ एडर किसी को कुछ पूछना है, हाफ एडर में कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? हाफ एडर क्लियर है, डायग्राम इनपुट्स? सर हाँ बताइए। सर डायग्राम बता दीजिए एक बार फिर। ये तो हाफ एडर जो आपने कल, इसीलिए कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइनिंग पहले बताई गई है कि आपको पहले पता रहे। पहले जो भी ऑपरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं। आफ्टर डिजाइनिंग द ट्रुथ टेबल वी मैप ट्रुथ टेबल इन द के मैप और बुलियन एक्सप्रेशन। के मैप ड्रॉ करने के बाद आपको टेबल से एक एक्सप्रेशन मिलता है, और वो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होता है। उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाफ एडर जो होता है वो आपका एक्सॉर गेट और एंड चाहिए होता है उसको। सम के लिए एक्सॉर गेट, कैरी के लिए एंड गेट चाहिए।
वो आपके एक्सप्रेशन जैसे कि कल लिखा था कि ए बार बी एफ इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी ए बी बार, तो इसको हम लोग एक्सॉर गेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सॉर गेट यहाँ पे चाहिए। और एंड क्या होता है, एंड के लिए कैरी ए बी, कैरी का आया था सी इक्वल टू ए बी आया था, तो उसको एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 गेट चाहिए हाफ एडर बनाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक एक्सॉर गेट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ए बी चाहिए था, उसका समेशन चाहिए, और एक एंड गेट चाहिए जिसमें कि हमें ए बी का एंड ऑपरेशन चाहिए। तो यहाँ पे आपको ए बार बी प्लस ए बी बार मिल रहा है, ए बार बी प्लस ए बी बार मिल रहा है, एक्सॉर गेट का ये फंक्शन होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंड गेट मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, तो इस तरह से कैरी भी मिल गया और सम भी मिल गया, तो आपका ये पूरा हाफ एडर कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये चीज़ें बताई गई कि हाफ एडर में क्या क्या लेबलिंग बताएगा कि क्या क्या नाम है, क्यों नाम है। फिर लिमिटेशन बताया गया कि हाफ एडर में आपका सिंगल बिट के 2 नंबर ऐड हो सकते हैं, 2 बाइनरी बिट ऐड हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 2 बिट्स आती हैं। तो उसके लिए होता क्या है, हमारे पास फुल एडर दिया है। फुल एडर क्या है कि ऐसा एक सर्किट है, फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच परफॉर्म एडिशन ऑन द 3 बिट्स, 3 बिट को ऐड करने के लिए काम आता है। कैसे कर आता है देखते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस द 2 आउटपुट्स, 2 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा सम एंड कैरी। As we have seen that the half adder cannot respond to 3 input. The limitation of half adder is it cannot respond to 3 inputs, and hence the full adder is used to add 3 bits. इसीलिए फुल एडर को हम लोग 3 बिट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। अब फुल एडर में होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट्स, ऑफ ईच 2 आर इनपुट्स वेरिएबल representing 2 significant bits to be added, whereas the third input terminal is the carry from the previous addition. The two outputs are a sum of carry. इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपका हो रहा है क्या कि इनपुट तो हमारे पास 2 ही है, इनपुट तो 2 ही है, लेकिन इनका जो समेशन है, इनका जो समेशन है उस समेशन को अगेन एक इनपुट की तरह यूज कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कैरी इन भी है, देखिए कैरी इन मतलब कि एक एज ए इनपुट दिया जा रहा है इंटरनली, इससे आपका 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, और 3 कॉम्बिनेशन बनने के बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा वो सम आएगा और कैरी आउट आएगा। तो एक कैरी इन है जो इनपुट में दी जा रही है, और फाइनल कैरी आउट है जो आउटपुट में निकल रही है। तो एक तरह से कैरी इन भी तीसरा वेरिएबल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ए बी आपके इनपुट वेरिएबल है, और सीन आपका, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सीन जो है आपका वेयर एज द थर्ड इनपुट वेरिएबल, ये थर्ड इनपुट वेरिएबल इनपुट टर्मिनल इज द कैरी फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन का वो है आपका कैरी है, उसको भी तीसरे वेरिएबल की तरह यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 इनपुट आ गए, ए बी एंड सी इन, 3 इनपुट है तो 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको, 3 इनपुट के लिए 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, तो 8 कॉम्बिनेशन कैसे हैं, हम लोग को ये चीजें पहले से बताएं कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल टेबल बनाना ईजी है कि 8 कॉम्बिनेशन के लिए ए बी आपका सीन वेरिएबल्स हो गए, लिखना वेरिएबल लिखते हैं, 2 वेरिएबल आउटपुट हैं, सिग्मा समेशन के लिए है, सी आउट आउट कैरी है, सी आउट कैरी है। ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, एज इट इज होगा। यहाँ पे हाफ एडर फुल एडर के ब्लॉक डायग्राम में कोई खास अंतर नहीं है, ए बी दिया हुआ है और सी इन दिया है, 3 वेरिएबल्स हो गए। 3 वेरिएबल्स के को अगर आप कंप्यूट करेंगे फुल एडर से तो आपको एक समेशन मिलेगा और कैरी आउट मिलेगा, ये आपका ब्लॉक डायग्राम। केवल एक ये इनपुट हुआ है तीसरा वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल्स सी इन बी ए, कोई भी ए बी ले सकते हैं, वेरिएबल्स में कोई नाम नहीं है, ए वाले लीजिए, बी बाद में लीजिए, सी इन बाद में लीजिए। अब 3 इनपुट्स के लिए आपका जो वेरिएबल्स की जो टेबल बनती है, आपने सबने बनाया है बाइनरी टेबल, जैसे कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये आपके 3 कॉम्बिनेशन, 3 वेरिएबल के लिए कॉम्बिनेशन के लिए प्रॉपरली 8 कॉम्बिनेशन मिले हैं। तो इसको आप लिख देंगे, इसको फिर सम करेंगे। सम कैसे करेंगे, इसमें होता क्या है कि जैसे कि पहले 2 वैल्यू ऐड होती हैं, उसके बाद तीसरी उस जो आंसर आता है उसमें तीसरी वैल्यू ऐड होती है। तो 0 + 0 0 0 ही हो गया पूरा, कैरी 0, 0 + 0 0 हुआ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा ध्यान से। 0 + 0 पहले ऐड हमेशा दो से ही होगा, जो आएगा उसमें तीसरा ऐड होगा। तो 0 + 0 0 हुआ, और उस आंसर 0 में फिर 1 ऐड किया तो 1 हो गया। 0 + 0 0, देन ऐड 1 1 हो गया, कैरी 0 हो गई। अब यहाँ पे देखिए
0 प्लस 1 1 हुआ, और 1 प्लस 0 अगेन 1 हो गया। 0 प्लस 1 1 है, और 1 प्लस 0 1 है, ये 1 आया और फिर 0 आया। ठीक है, इसके बाद अब आगे ध्यान दीजिएगा। 0 प्लस 1 1 है, 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है? 0 और कैरी 1। 1 प्लस 1 आपका सम आया, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 आया, और 1 प्लस 1 0 आएगा, कैरी 1 आएगा, 0 आएगा कैरी 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 1 आया, और यहाँ पे 0 कैरी आया। इसके बाद 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। 1 प्लस 1 आपका 0 आएगा और कैरी आएगा, और उसके बाद फिर आपका 1 प्लस 1 0 आया और कैरी आया, तो फिर आपका 0 प्लस 1 होगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा। डबल 1 देखिए, इसको छोड़ दिए, तो डबल 1 जो है उसका क्या आता है? डबल 1 का आता है 0 1 0 आता है, कैरी आता है, इसीलिए लिखा हुआ है 0 है और कैरी 1 आया। और 3 1 है, क्या होगा? 1 प्लस 1 0, कैरी 1, तो फिर 1 प्लस 1 क्या हो गया? फिर आपका 1 प्लस 1 1 हो गया, और फिर आपका अगेन कैरी आ गया। तो ये जब 3 1 होंगे तो आपका इस केस में क्या हो जाएगा कि समेशन भी बनाएगा और कैरी भी बनाएगा, कैरी आउट भी बनाएगा। तो इस तरह से आपका टेबल बनेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो टेबल आसानी से बन जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन आप जब यूज़ करेंगे सिंपल, ये टेबल बनी है। इसको आप चाहे तो इंडिविजुअली एक एक करके कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और या तो फिर एक साथ आप कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आपकी टेबल बन जाती है। टेबल के बाद, टेबल फिर से इन्होंने लिख दी यहाँ पे कि टेबल जो बनी हुई है, यहाँ पे देखिए 3 पूरी टेबल बना दी इन्होंने टेबल। तो टेबल बनाने के बाद क्या है आपका, अब इस टेबल को एनालाइज करते हैं, क्या इसमें जरूरत है। एनालाइज करने में पता लगा कि इन्होंने फिर इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया है कि ए बी लिख दिया है इधर, और सी इधर कर दिया, सी ए बी सी लिख दिया है। इसको ये जो बनाया था इन्होंने इसके अकॉर्डिंग बनाया था, सी इन ए बी। चाहे ये बनाइए प्रॉपर वे में बनाइए, आप चाहे ये बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, क्योंकि ये कॉमन है, ए बी सी है, और यहाँ पे सम सी आउट है वही चीज़। कॉलम को इधर उधर किया गया है। जैसे ए वाले कॉलम को उठा के इधर कर दिया इन्होंने, बी वाले कॉलम को वहीं रख दिया, सी वाले को सी इनको इधर करते हैं, ए बी सी फॉर्मेट में करने के लिए, जैसे डिजाइन करना इजी रहे। सम को उसी तरह निकाला, सम तो चेंज हुआ नहीं कभी। अब इस टेबल को एनालाइज करते हैं। फ्रॉम द अबव टू टेबल वी कैन ऑब्टेन द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर बोथ सम एंड कैरी। इस टेबल को एनालाइज करने के बाद इसके आप क्या करेंगे कि फिर से वही के मैप ड्रॉ करेंगे। के मैप ड्रॉ करने के बाद 3 वेरिएबल का के मैप है आपका, तो 8 कॉम्बिनेशन में बनेगा। तो इसमें आपको एक सम के लिए के मैप बनेगा, एक सी आउट के लिए के मैप बनेगा। तो उसके बाद एक्सप्रेशन निकलेंगे आपको। अधिकतर के मैप से ही करिए अगर 3 वेरिएबल या 4 वेरिएबल तक दिए हैं। एक्सप्रेशन निकलने के बाद जब आप एनालाइज करते हैं, एनालाइज का मतलब वही है कि आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया फाइनल एक्सप्रेशन। तो सम का एक्सप्रेशन निकला और कैरी आउट का एक्सप्रेशन निकला। यूजिंग दोज एक्सप्रेशंस वी कैन बिल्ड द लॉजिक सर्किट फॉर फुल एडर। उन एक्सप्रेशन से हम लोग को लॉजिक सर्किट बनाना है। बट बाय सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन फर्दर वी कैन डिराइव एट द पॉइंट दैट फुल एडर कैन इजीली इंप्लीमेंटेड यूजिंग हाफ। अब इसको और ध्यान से देखेंगे आप, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें फुल एडर कुछ नहीं है, फुल एडर 2 हाफ एडर को ऐड करके बनाया गया। अभी सर्किट में भी देखिएगा, फुल एडर maintained by the adding the 2 half adder by using OR gate। अगर आप 2 हाफ एडर को ऐड कर दीजिए OR गेट से तो वो फुल एडर हो जाता है। जब आप एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर 2 हाफ एडर एक साथ मिलाइए और उसको OR गेट से अटैच कर दीजिए तो वो आपका फुल एडर हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर लिया। अगेन इन्होंने लिख दिया कि फुल एडर सर्किट के अंदर द फॉलोइंग इमेज, अब इमेज को दिखा रहे हैं इन्होंने, यहाँ देखिए कि हाफ एडर 2 हाफ एडर को ऐड करना है OR गेट से। ए एंड बी मेन इनपुट्स हैं, सी इन आपका कैरी इनपुट है, कैरी इन है, और सिग्मा आपका समेशन है, सी आउट कैरी आउट है। देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ, अगर आप इसको हाइड कर दिए थोड़ी देर के लिए तो इतना पार्ट क्या है, हाफ एडर है, इतना पार्ट हाफ एडर है, एक हाफ एडर ये है, एक हाफ एडर ये है, इसको इन्होंने OR गेट से जोड़ दिया है, यही आपका फुल एडर है। तो डायग्राम बनाना भी बहुत ईजी है कि 2 हाफ एडर को एक साथ कंबाइन कर दिए
एक फुल एडर बन जाता है। तो यहाँ पे आपने ABC लिख दिया, AB ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, ABC ये वाला सीन रहेगा। तो इसको आपने क्या करना है कि पहले तो आप हाफ बनाइए, ये एक्सॉर बनाया था, ये एंड बनाया था। इसके बाद ये कैरी वाला कैरी के कैरी में जाएगा, कैरी वाले कैरी में जाएंगे, और इसका जो आउटपुट निकला है समेशन वाला, ये समेशन जो निकला है, इन्होंने PI दिया है मतलब कि इंटरमीडिएट आउटपुट के लिए। ये समेशन जो निकला है अगेन इनपुट जा रहा है, और ये किससे ऐड होगा, इस सीन तीसरे वेरिएबल से। दो वेरिएबल ऐड किए आपने इससे, इसकी कैरी को आगे फॉरवर्ड किया, और दो वेरिएबल जो इसका आउटपुट आया हुआ है PI, और ये जो तीसरा वेरिएबल सीन है, इसको आपने ऐड किया है, फुल हाफ एडर किया है, ऐड किया है एक्सॉर गेट के थ्रू, तो समेशन आ जाएगा। और इससे आपका जो आपका कैरी निकलेगा, तो ये निकलेगा। तो दोनों कैरी, प्रीवियस कैरी और करंट कैरी को आप ऐड करेंगे, तो आपकी फाइनल कैरी आ जाएगी। इस तरह से फुल एडर का डायग्राम है, जो कि वी आर मेक द फुल एडर बाय द हेल्प ऑफ टू हाफ एडर यूजिंग और सिंबल, और मतलब ऐड करना, ऐड करके। तो ये चीज यहाँ पे फुल एडर की आ गई है। क्लियर, एड्रेस सभी को क्लियर है? फुल एडर, यस फुल एडर, सर। हाँ। कि देखिए मेनली थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि अगर आपने कल का थोड़ा सा याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे बनाते हैं, क्या प्रैक्टिस करें किया होगा आपने, इसलिए क्योंकि सारे लेक्चर आपस में अटैच होते हैं, तो उसको आपने किया तो यहाँ पे आपको क्लियर मिल जा रहा होगा कि यहाँ से कैसे ये चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। क्योंकि अब देखिए फुल एडर जब आएगा तो पूरा हमें ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है, सर्किट भी बनाना है, ये भी बनाना है, तो हम सब कुछ नहीं किसमें कर सकते हैं। इसमें केवल आपको फाइनल चीज़ लिखनी है। चाहे तो आप अगर इसे के मैप से क्लियर नहीं है तो आप के मैप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बीच में के मैप इसको बना के आप तब एक्सप्रेशन लिखिए, या तो सीधे लिख दिए। तो इस तरह से मेनली क्या तरीका आपने दोनों ही हर क्वेश्चन में इसी तरह से दिया हुआ है कि पहले आपने डिफाइन करना है, उसके बाद डिफाइन करने के बाद नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल आपको लिखना होता है, ये सारे स्टेप वही हैं। फिर आपको ब्लॉक डायग्राम जो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है, फिर ट्रुथ टेबल बनानी है, कोई भी एक बना सकते हैं, ऑर्डर बस चेंज किया है यहाँ पे, बाकी वही है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे आपको के मैप के थ्रू मिनिमाइज करना है और एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन निकालना है, या डायरेक्टली आप अगर आपको याद है तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि सम और कैरी दो आएंगे, और इसमें भी आपका ये चीज़ लिखी हुई है कि जब आप एक्सप्रेशन को एनालाइज करेंगे तो पता लगेगा कि फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ एडर विद हेल्प ऑफ और गेट। तो ये चीज़ पता चल जा रही है। इससे हम लोग क्या करेंगे, फिर से अब सर्किट डिज़ाइन करेंगे, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल को लिखते हैं दोबारा से, और इस तरह से दो हाफ एडर, एक हाफ पहला हाफ एडर बनाया, इसकी फर्स्ट आउटपुट को थर्ड कैरियन से ऐड कर दिया, और दूसरा कैरी है, कैरी में ऑब्वियसली ऐड हो जाएगा, तो सेकंड जो वैल्यू आ रही है वो फाइनल सम देगा और उसको कैरी को ऐड कर देंगे। इस तरह से ये फुल एडर बन गया है। अब एक एडर बना है, ये बस इतना ही आपका एडर में है। एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए, अगर बाइनरी पैरेलल एडर क्या होता है, इसको बस हम कॉन्सेप्ट समझना है, ज़्यादा इसमें डायग्राम नहीं बनाना है। बाइनरी पैरेलल एडर आया नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। पैरेलल पैरेलल का मतलब होता है कोई चीज़ एक साथ लगाई गई, एक साथ इनपुट उसमें आ रही है। सीरीज का मतलब क्या होता है, वन बाई वन, फर्स्ट इनपुट सेंड टू द अनदर, फर्स्ट आउटपुट सेंड टू द अनदर इनपुट, देन आउटपुट सेंड टू द अनदर इनपुट, सीरीज में कहते हैं उसको। तो दो ऑर्डर हैं, एक पैरेलल है एक सीरीज है। तो पैरेलल एडर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जितने भी फुल एडर होंगे एक एक एरे में, एरे स्ट्रक्चर के अंदर सारे एडेड हैं, और वन सिंगल टाइम पे सारे एडर पे एक साथ इनपुट जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप A0 B0 A1 B1 A2 B2 AN BN, तो सब पे एक साथ इनपुट जा रहा है। तो जब आपके, अब हमारे पास फुल एडर ही है, फुल एडर तीन तीन इनपुट को तो ले सकता है, दो इनपुट लेगा एक कैरी इन लेगा। लेकिन अगर आप सोचिए बड़े नंबर आ गए, हमारी जो बाइनरी बिट है वो तो 10 नंबर की होती है, 10 बिट्स की होती है, 16 बिट की होती है, 32 बिट की होती है ना। जैसे स्काई में होता है आपका, वो आपका 27 या 16 बिट से ऊपर हो जाता है, 7 बिट्स तक होता है। तो ये इस जब इतना ज़्यादा होता है तब कैसे ऐड होगा, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फुल एडर लगाते हैं, कई सारे फुल एडर लगा देते हैं, और वो दो दो इनपुट लेके आके आगे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह के केस में जब आपका यूज़ होता है कि फुल एडर परफॉर्म्स एडिशन ऑफ टू वन बिट नंबर एंड ऑल्सो द कैरी इनपुट, हर चीज़ की लिमिटेशन की वजह से ये सब बनता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल एडर परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ टू 1 बिट नंबर एंड आल्सो कैरी इन। फुल एडर से हम 2 इनपुट बिट को ऐड कर सकते हैं और एक एडिशनल कैरी इन यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा। अब इसके बाद है क्या, फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर विद मोर देन 1 बिट, अगर एक 2 से ज़्यादा बिट्स हैं, 3-4 बिट है, 7 बिट है, 16 बिट है, तो क्या होगा, तो मोर देन 1 फुल एडर हमें ऐड करना पड़ता है। और ये दीज ऑल फुल एडर्स combine and in a parallel order. One full adder is required and and the number of full adders depends on the number of bits. अब कितने फुल एडर लगेंगे ये डिपेंड करता है। जैसे आपका ये आपका क्या बना हुआ है, ये 1 2 3 4 बिट का फुल एडर है, मतलब 4 बिट के ऑपरेशन ले सकता है। तो जितने नंबर ऑफ फुल एडर लगेंगे उतनी नंबर ऑफ बिट्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। दस ए पैरेलल एडर इज अब इसीलिए बताया इन्होंने कि इसलिए हमारे पास पैरेलल एडर है। ए पैरेलल एडर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फुल एडर एंड इज यूज्ड फॉर एडिंग ऑल बिट्स ऑफ द टू नंबर साइमल्टेनियसली। दो दो पेयर में नंबर्स आते हैं और आपका ये बनता है पैरेलल फुल एडर। इसके बाद क्या है कि बाय कनेक्टिंग n नंबर ऑफ फुल एडर इन ए पैरेलल, बाय कनेक्टिंग n नंबर ऑफ full adder in a parallel and n bit parallel adder can be constructed। n bit बन सकता है, यहाँ पे ये है 2 4 6 कितना भी हो सकता है, n bit parallel adder मिलेंगे। From the this diagram it is noted that the no carry at the least significant position। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोई कैरी अलग से नहीं दी गई है, ये देखिए तीसरा वाला जो है वहाँ पे नहीं दिया है, 2 ही दिए हैं, तीसरा यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अब आपको ये जो फुल एडर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा डायग्राम, इतना बड़ा सर्किट लगा हुआ है। ब्लॉक डायग्राम का यूज यहाँ समझ आ रहा होगा कि अगर आप इतने बड़े सर्किट को 4 बार बनाते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि हम जान चुके हैं कि फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम जो होता है ऐसा होता है। इसी सिंबॉलिक डायग्राम को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि कई सारे फुल एडर आप लगा सकते हो, तो इतने बड़े डायग्राम को बार बार लगाएं 4 बार, या हमने क्या किया कि इसके सिंबल को लगा दिया, ब्लॉक डायग्राम को लगा दिया, सेम चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को लगाया है। 4 फुल एडर लगे हुए हैं, एक एक फुल एडर में 2 एक्सॉर गेट, 2 एंड गेट, एक और गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यूज आ रही, जैसे A0 B0 आ रहा है, ये एक आपको इनिशियल कैरी दी जाती है। ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए एक इनिशियल कैरी आपको बस दे देनी है, सीन यहाँ देना दिख रही हो। अब ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, आउटपुट आएगा, जो कैरी आउट निकलेगी इसकी, जो इसका कैरी आउट निकलेगा भाई इस फुल एडर में होता क्या है, अगर आप इसको छोड़ दीजिए अभी, इतने डायग्राम को देखिए तो सीन होता है, ए बी होता है, सम होता है और कैरी आउट होता है, ये तो होते हैं 5। तो यहाँ पे ये यस सर। सीन आपने इंटरनली दे दिया, मतलब ये इनिशिएट कर दिया, ये क्लॉक, ये आगे चल के आपको क्लॉक पता चलेगी, क्लॉक मतलब इनिशियल दिया, कंट्रोल कर रहा है। और ये आपके 2 इनपुट हो गए, इन तीनों को यूज करके आपको सम मिल गया, एक कैरी आउट निकला, जो कैरी आउट निकलेगा वो अगेन नेक्स्ट वाले के लिए सीन हो जाएगा। अब बार बार सीन नहीं दिया जाएगा, इसको पैरेलल इसको सीन मिल जाएगा, इसको सीन मिल गया, अगेन 3 इनपुट हो गए, फिर आपका आउटपुट निकलेगा, कैरी आउट निकलेगा, फिर सीन हो जाएगा, मतलब इसका सी आउट इसके लिए सीन हो जा रहा है। फिर ये 3 निकले और फिर आउटपुट निकल गया, सी आउट फिर सीन हो जाए, ऐसे करके देखिए डॉट डॉट बनाओ, मतलब ऐसे करके जितने भी आप फुल एडर लगाएंगे, जितने बिट का आपका सिस्टम होगा उसने सब में ऐसे ऐसे किया जाएगा। और ए एन मतलब एन टर्म तक ए एन बी एन सी एन सी इन, फिर ये फाइनल इनपुट और सी आउट। तो जो आपके आउटपुट्स कॉम्बिनेशन आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, जो टोटल कॉम्बिनेशन आएंगे वो आपके यहाँ पे आएंगे, कि नंबर जो आंसर आ रहा है वो आपका ये आएगा। तो इस तरह से ये आपका पैरेलल बाइनरी एडर है, बहुत इजी है, ये कभी भी अगर जैसे आ गया तो कुछ घबराना नहीं है। पैरेलल बाइनरी एडर क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स जो है फुल एडर में केवल 3 बिट को ऐड 2 बिट को ऐड कर सकते हैं, एक कैरी इन होती है। अगर हमें मोर देन 1 बिट्स चाहिए, मल्टीपल बिट्स को ऐड करना है एक साथ में पैरेलली, तो हम कई सारे फुल एडर को एक साथ लगाते हैं पैरेलल में एरे फॉर्मेट के अंदर, और इस तरह से आप इसका सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं। जब जब बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम होते हैं तो हम उसको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में बनाते हैं, वहाँ पे सर्किट ये वाला नहीं बनाते हैं। इसका मीनिंग यही है कि इस जगह पे ये पूरा लगा हुआ है इतना बड़ा। तो सीन हो गया, और यहाँ पे सीन इनिशिएशन के लिए और फाइनल आउटपुट यहाँ पे होना।
ये फुल बाइनरी फुल एडर है। बस यहाँ पे भी आपका वही चीज़ उन्होंने बता दी कि अभी यहाँ समझाया इन्होंने कि पैरेलल, ये आपका जो बना हुआ है ये क्या है, 4 फुल एडर लगे तो इसका क्या कहेंगे, 4